सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, फिजिक्स का ही है. द इमेज फॉर्म्ड बाय a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object. Where is the object placed? Concave mirror, real, inverted and larger, magnified image है. तो where is the object placed? Between F and C. Real image magnified कब बनती है? When the object is between focus and center of curvature. और पार्ट है, name the part of a lens through which a ray of light passes without suffering any deviation. That is O, optical center. Seventh question is, in the arrangement shown in the figure, there are two coils wound on a non-conducting cylindrical rod. वही mutual induction है. Initially the key is not inserted in the circuit. Later the key is inserted and then removed shortly after. What are two observations that can be noted from the galvanometer reading? तो पहले क्या करते हैं कि कॉइल्स जो है उसको वाउंड किया हुआ है, पहले की प्लेस नहीं की है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ सेकंड कॉइल. When key is inserted and then removed shortly after, तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होगी, थोड़ी उसी टाइम के लिए बस डिफ्लेक्शन होगी, और उसकी डायरेक्शन हमें पता ही है कि क्या होगी. ठीक है, वो ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर होगी. इट विल अपोज द करंट फ्लोइंग इन कॉइल 1. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, दिस इज rod, conducting rod, two coils have been wound. इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है और इसके साथ की अटैच्ड है. और जैसे ही हम ये की प्रेस करेंगे, दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2, तो इसमें करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन. तो ये वाले करंट को ये अपोज करेगा, तो ये अगर इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा. So this way current will be flowing. Momentary deflection होगी. So deflection will be towards that side. ये कौन सा हो गया? Clockwise हो गया ना, ये clockwise हो गया. हाँ जी. नहीं, वो तो बेस लिया है ना. अगर हम कंडक्टिंग लेंगे, जैसे आयरन ले लेंगे, तो वो तो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा. हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टडी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कॉइल्स की स्टडी कर रहे हैं. 8th है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. वो आपको आता ही है, स्ट्रेट करंट कंडक्टर, कंसेंट्रिक सर्कल्स. कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम? रूल यूज कर रहे हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल्स राइट हैंड thumb rule. You can draw both the cases. Okay. So then next question is also quite good question. This 9th. Two unequal resistances are connected in parallel if you are not provided with any other parameters. For example, numerical values of I and R are not given to you. What can be said about the voltage drop across the two resistors? Two resistances हैं, they are connected in parallel. Yes, that will remain the same. Potential difference will remain same, you know, in parallel combination. और part है, some work is done to move a charge Q from infinity to a point A in space. ठीक है, infinity से हम certain point पे ले आए. ये क्या होता है? This work done is potential at that point. The potential of point A is given as V. What is the work done to move this charge from infinity in terms of Q and V? Very simple. तो वही फॉर्मूला लिखना है आपने. V is W by Q. Formula just they are asking. So let us come to the main questions. I had already sent this link. Have you already seen this paper? Solve किया आपने? Okay, 19th question देखिए. This is case study type question.
Read the following, answer any 4 questions from first part to 5th part. Sumati wanted to see the stars of night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant stars. She finds out that the telescopes which are made of lenses are called refracting telescopes and the ones which are made of mirrors are called reflecting telescopes. ठीक है, वो क्लियर ही है, जिसमें मिरर है वो रिफ्लेक्टिंग है, जिसमें लेंस है वो रिफ्रैक्टिंग है. So she decided to make a refracting telescope, मतलब लेंस यूज करेंगे. She bought 2 lenses L1 and L2, out of which L1 was bigger and L2 was smaller. The larger lens gathers and bends the light, while the smaller lens magnifies the image. Big thick lenses are more powerful, so to see far away she needed a big powerful lens. Unfortunately, she realized that a big lens is very heavy. Heavy lenses are hard to make and difficult to hold in the right place. Also, since the light is passing through the lens, surface of the lens has to be extremely smooth. Any flaws in the lens will change the image. It would be looking like through a dirty window. So based on the diagram, first question is, what kind of lenses would Sumati need to make the telescope? Concave, convex, bifocal की flat lenses, convex lenses. आपको पता ही है कनकेव लेंस का डाइवर्जिंग नेचर है, तो उससे कोई इमेज अच्छी नहीं बनती है, तो कन्वेक्स लेंसेज होंगे दोनों के दोनों. फॉर एग्जांपल हम माइक्रोस्कोप ले लें, हम टेलीस्कोप कोई भी ले लें, उसमें दोनों लेंसेज प्रेफरेबली कौन से होते हैं? कन्वेक्स ही होते हैं. सेकंड है, if the powers of lenses L1 and L2 are in the ratio 4:1, what would be the ratio of focal length of L1 and L2? P is 1/f, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना फोकल लेंथ पावर के. तो अगर पावर्स की रेशियो 4:1 है तो फोकल लेंथ की रेशियो 1:4 होगी, उसका रेसिप्रोकल होगा. सो आवर आंसर इज बी पार्ट, 1:4. आर यू गेटिंग इट? थर्ड पार्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस? ए पार्ट है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, B है डबल द फोकल लेंथ, C है इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, D है इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. A पार्ट करेक्ट है, H2/H1. फोर्थ है, सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद द लेंसेज एंड फाउंड दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस L2 इज 3. जो सेकंड लेंस है जिसमें से हम इमेज देखते हैं आईपीस है, उसकी मैग्निफिकेशन दी हुई है 3. If in her experiment with L2 she found an image at 24 centimeter from the same lens. जो लेंस L2 है उसकी मैग्निफिकेशन 3 है एंड इमेज डिस्टेंस इज 24. ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, V पॉजिटिव होगा. ठीक है. एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट? हमें U निकालना. वेरी सिंपल, बताइए क्या? यूज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस. क्या होता है? V/U प्लस V/U. ठीक है. सो M इज V/U, यहां से U आ जाएगा V/M, 24/3, 8 सेंटीमीटर. सो ऑप्शंस आर 72 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. आंसर इज 8 सेंटीमीटर. बहुत ही सिंपल पार्ट दिया है. एक मिनट में आपको स्टॉप शेयर करके ये दिखा देती हूँ, देख लीजिए बोर्ड. क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लेंथी होती है, अदरवाइज देयर इज नथिंग. ठीक है. हाँ जी जीवितेश. सो हैव यू सीन द सॉल्यूशन टू 8 सेंटीमीटर? दैट इज द आंसर. So I am again sharing the question. Yes, fifth part. Sumati bought not so thick lenses for the telescope and polished them. What advantages, if any, would she have with her choice of lenses? तो उसने ज्यादा थिक लेंस यूज नहीं किया, उसकी क्या एडवांटेज होगी? देखो ऑप्शंस क्या है.
She will not have any advantage as even thicker lenses would give clearer image. Thicker lenses, thicker lenses would have, wait, wait. Okay, so B is thicker lenses would have made the telescope easier to handle. Thick lens से easier to handle थोड़ी होगा. Not so thick lenses would not make the telescope very heavy and also allow considerable amount of light to pass. Not so thick lenses will give her more magnification. More magnification तो नहीं होगी. Thick lens की focal length small होती है. हाँ, focal length small है तो उससे क्या होगा? Magnification चलो कह सकते हो आप. बट इसमें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, उसने सीधा सीधा उसमें रीजन बताया है कि टेलीस्कोप हैवी होने की वजह से उसने वो लेंस यूज नहीं की. सो सी पार्ट इज करेक्ट. नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड आल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो दीज वर 5 पार्ट्स एंड दिस इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. एक और है 20th क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स का ही होगा, केस स्टडी का. I am reading it out. A solenoid is a long helical coil of wire. Solenoid आपको पता ही है. Through which a current is run in order to create a magnetic field. The magnetic field of solenoid is the superposition of fields due to current through each coil. अगर हर coil का field हम लें और उसका resultant निकाल लें तो वो हमारा resultant magnetic field होगा. ठीक है. It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside and is similar to field of a bar magnet, having a north pole at one end and a south pole at the other depending upon the direction of current flow. The magnetic field produced in the solenoid is dependent on a few factors such as current in the coil, number of turns per unit length, etc. We also know the formula. What is the formula of magnetic field due to solenoid? Yes, B is equal to mu naught Ni. ये आपको पता ही है. ठीक है, so they are talking about this dependence. Following graph is obtained by a researcher while doing an experiment to see the variation of magnetic field with respect to current in the solenoid. Very simple. This graph of magnetic field with current is given, which is a straight line because it is directly proportional. Unit of magnetic field is millitesla and current is ampere. Millitesla means 10 raised to power minus 3 Tesla magnetic field का unit है. Now see what are the questions. What type of energy conversion is obtained in a linear solenoid? Mechanical to magnetic, electrical to magnetic, electrical to mechanical, magnetic to mechanical. इलेक्ट्रिकल का तो यहाँ पे है ही नहीं कोई काम. आप कहोगे इसका क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, करंट के साथ, राइट. सो बी पार्ट इज करेक्ट. इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. सो इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक. सेकेंड, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. अगर इसके अंदर टर्न्स के बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन बार इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पर, देन व्हाट विल हैपन? द बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन अ शॉर्ट सर्किट. नो, ऐसा कुछ नहीं होगा. द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट. ये ठीक है, वो बार मैग्नेटाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ना. सोलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज wound over, the coil of wire is wound over a soft iron bar, और solenoid अकेला coil of wire होता है. ठीक है. C part है, the bar will be magnetized permanently. No, अगर हम आयरन की जगह स्टील बार यूज करते तो फिर हो सकता था. The bar will not be affected by any means. No, there will be effect. ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा. अगर हम उसका नेट इफेक्ट देखें तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगा, आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाएगा उसकी वजह से. थर्ड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप
electromagnet of any shape. They have also given in the passage bar magnet, and you also know कि magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of a bar magnet. ये जो पूरा पैटर्न है किसको रिजेंबल करता है? एक बार मैग्नेट के पैटर्न को. फोर्थ है, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. फोर्थ पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट. अब उन्होंने कहा कि चूज आउट ऑफ द फॉलोइंग की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं गई, आपको कंफ्यूज करने के लिए फर्दर उन्होंने टाइप्स पार्ट्स दे दिए. ए पार्ट है ओनली 4, बी पार्ट है फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है ओनली सेकंड. ओनली सेकंड. सो डी पार्ट इज करेक्ट, ओनली सेकंड. सिर्फ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो फॉर्मूला और ग्राफ दोनों चीजें बता दें. ठीक है. फिफ्थ पार्ट है फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. अब रीडिंग लेनी है आपने, ग्राफ से रीड करना है उसको. जस्ट फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला. वो उन्होंने जितना दिया हुआ है फील्ड उसके ऑपोजिट कितनी वैल्यू है, बस वो ग्राफ से रीड करनी है अगर ये आपके सामने होता तो बाकी इनको मैं शेयर कर रही हूँ दोबारा से. तो करंट 0.8 एम्पियर के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए फील्ड कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 12 और 14 के बीच में. सो ए पार्ट इज करेक्ट. आगे फॉर लार्जर करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली. नो, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, एक लाइन आ रही है. फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3. नो, वो 12 था, 12 और 14 के बीच में 13 था. देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.8 एम्पियर करंट. इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो आंसर है ए पार्ट इज करेक्ट. कि फॉर करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला. तो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बस आपको उसको स्टडी करना है. ठीक है. एक और इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है रेजिस्टेंसेस का. 25th क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है और वो डिस्पर्स कर रहे लाइट को. देयर इज अ प्रिज्म एंड इट इज डिस्पर्सिंग द रेज. उन्होंने सिर्फ दो शो की हैं, वायलेट और रेड. इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि बाकी के कलर्स बीच में. A student observes above phenomenon in the lab as a white light passes through the prism. Among many other colors, he observed the position of two colors, red and violet. What is the phenomena called? What is the reason for white light to bend more than red light? ये मैंने कल करवाया आपको कि violet light क्यों ज्यादा bend कर रही है. उसकी short wavelength की वजह से उसका refractive index high है and hence its angle of deviation is also more. So it is getting deviated through larger angle. So that is why it is deviated the most. It is found at the bottom. ये numerical काफी अच्छा है. 26th question देखिए. A student has two resistors, 2 and 3 ohm. Otherwise the circuit is given this is the circuit given. अब वो ये R1 है 4, this is R2. A student has two resistors, 2 ohm and 3 ohm. She has to put one of them in place of R2. उसको उन दोनों में से एक यहाँ पे प्लेस करना है. The current that she needs in entire circuit is exactly 9 एम्पियर. उसको टोटल करंट 9 एम्पियर का चाहिए. तो शो बाय कैलकुलेशन 2 या 3 में से कौन सा यहाँ पे होना चाहिए. अच्छा क्वेश्चन है पर बहुत सिंपल है. चलो करते हैं इसको सॉल्व. पहले आप ऐसे करिए कि टोटल करंट से टोटल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड निकाल लीजिए. बैटरी वोल्टेज इज आल्सो गिवन टू यू.
ठीक है। सो टोटल करंट रिक्वायर्ड इज 9 एम्पियर, बैटरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, सो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट इज 12/9। तो ये आपका आ गया 4/3 ओम। रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है 4/3। अब उनमें से एक आपको पता है, दूसरा निकालना है, उसका फॉर्मूला लगा लो, पैरेलल में है ना, पैरेलल में है। So solve this, 2 ohm is the answer. So the answer is 2 ohm. दोनों का चेक किया अलग अलग, दोनों का अलग अलग चेक करके निकाला होगा, वो फिर टाइम वेस्ट होता थोड़ा सा, पर क्योंकि 2 ओम पहले में ही आ जाएगा तो फिर ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये सब आपको पता है, पैरेलल का सब कुछ पता है, ओम्स फॉर्मूला भी पता है, बस उन्होंने उसको दिया इस वे से है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा। So R2 is 2 ohm. This is the answer. अब इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स का आना है 5 मार्क्स का। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। तो 26 मार्क्स की फिजिक्स होगी। ओके, 36th क्वेश्चन, दैट इज अ 5 मार्क्स। लेट अस डू दिस। A, B, C, D, there are 4 bulbs and currents flowing through them are given. Currents flowing through them are given here. बच्चे एक सेकेंड, चलो बाद में बात करते हैं। इन द गिवन सर्किट ABCD आर 4 लैंप्स कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द बल्ब्स अरेंज्ड इन? पैरेलल में। ठीक है, पहला पार्ट तो आराम से हो गया, 5 में से एक नंबर तो मिल गया। हाँ, सेकेंड है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस एनी टू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप्स। अगर वही है कि एक फ्यूज हो जाता है तो बाकी तब भी वर्क करते रहते हैं, तो ये एक एडवांटेज। तो ये दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सबको 220 वोल्ट मिलता रहेगा, तो सब एफिशिएंटली चलते रहेंगे। हाँ, 60 वोल्ट है यहाँ पे। 2 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो गए, 4 क्वेश्चन है टोटल। थर्ड है, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस व्हिच लैंप ग्लोज द ब्राइटेस्ट। सबसे ब्राइट वो होगा जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। पावर हाईएस्ट वो होगा P इज इक्वल टू VI। पैरेलल में है, V सेम है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर और करंट के रिलेशन में, P इज इक्वल टू VI। पैरेलल में दिया हो तो V सेम होता है, पावर हमने देखनी है, करंट हमें गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला बेस्ट सूटेड होगा? P इज इक्वल टू VI। तो अब देखिए, जिसका करंट मैक्सिमम है C का, उसकी पावर मैक्सिमम होगी। सो C लैंप विल बी ग्लोइंग ब्राइटेस्ट। जिसका करंट ज्यादा है, V तो सेम है, तो जिसका करंट मैक्सिमम है उसकी पावर मैक्सिमम है। सो C बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट। बल्ब C विल ग्लो विद मैक्सिमम ब्राइटनेस। फोर्थ पार्ट है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले टोटल करंट निकाल लीजिए, पैरेलल में करंट ऐड होते हैं, टोटल करंट है, ये टोटल वोल्टेज है, V इज इक्वल टू IR से R निकाल लीजिए। तो हाउ मच इज द टोटल करंट? 3 + 4 + 5 + 3 15। टोटल करंट इन द सर्किट, पैरेलल में यू नो करंट्स ऐड होते हैं। बैटरी वोल्टेज इज 60,
So R is V upon I 4. So resistance of the combination is 4 ohm. So you can have a close look. Resistance of the circuit is 4 ohm. Got it? Is that clear? अब इसी के साथ और वाला एक पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, वो मैग्नेटिज्म में से है, ठीक है? तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए. सो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड एंड बोर्ड गिव्स दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. फिजिक्स में स्पेशली ऐसे ही आएंगे. कर दो रब ये, ठीक है? यस, दिस डायग्राम इज गिवन टू यू. पैरेलल में क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा, और जब आप देखते हो करंट स्प्लिट होता है डिफरेंट ब्रांचेस में, तो उनका सम सेम रहता है. मतलब V सेम है तो करंट्स डिफरेंट है, पर जो टोटल करंट है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द लास्ट क्वेश्चन विद यू. और पार्ट देखिए अब इसका. PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. PQ is a current carrying conductor in the plane of paper as shown in the figure below. दो पॉइंट्स दिए हुए हैं R and S. This is R, this is S. Its distance is R2, its distance is R1. R1 is greater than R2. Clearly. First part है find the direction of magnetic fields produced by it at the points R and S. ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करिए. आर में डाउनवर्ड जा रही है, एस में आउटवर्ड आ रही है, तो आर हो गया इनटू द पेपर या इनवर्ड डाउनवर्ड, और एस में क्या है, आउट ऑफ द पेपर या आउटवर्ड. डायरेक्शन हो गई. डायरेक्शन क्लियर है गर्ल? सेकेंड पार्ट, गिवन R1 greater than R2, where will the strength of magnetic field be larger and give reason. फॉर्मूला में पता ही है स्ट्रेट कंडक्टर का, म्यू नॉट I over 2 pi R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. तो जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. सो एट S पॉइंट फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. At S point field will be stronger than the field at R point. You can add this formula here. पता ही है ना फॉर्मूला, देखो काम आ रहा है ना. थर्ड है, आर यू अवेयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन? हमने सर्कुलर वायर, सोलिनॉइड, स्ट्रेट वायर सबके फॉर्मूले किए हुए हैं. म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर स्ट्रेट वायर का है, सर्कुलर का म्यू नॉट आई ओवर 2 आर है, सोलिनॉइड का म्यू नॉट एन आई था. तो वो फॉर्मूला यूज किया, हमने डिपेंडेंस देखी कि बी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जहां पे आर कम है वहां पे बी ज्यादा. ऑब्वियसली जो पॉइंट आपके क्लोज है वहां स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी ग्रेटर. दूर हो जाएगा तो फील्ड वीक होता जाएगा ना. कौन सा फॉर एग्जांपल? प्रूव नहीं कराया मैंने, सिर्फ बताया था. ठीक है. एक मिरर फॉर्मूला शायद मैंने करवा दिया था, वो सिलेबस में नहीं है. आई टोल्ड यू कि वो बस फॉर्मूला ही है. If the polarity of battery connected to the wire is reversed, how would the direction of magnetic field be changed? Right now magnetic field की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर हम बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे या करंट की डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा. So magnetic field will be now reversed, it will be clockwise. Fourth, explain the rule that is used to find direction of magnetic field for a straight conductor carrying current. कौन सा रूल यूज कर रहे हैं हम? फुल नेम लिखना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. विच रूल वी आर यूजिंग? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. तो ये हमारा 5 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए. सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ लेटेस्ट CBSE सैंपल पेपर. और भी हम करेंगे डिस्कस ऐसे ही क्वेश्चंस. देयर आर सो मेनी सैंपल पेपर्स एंड इन द मार्केट नाउअडेज एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन. यू शुड डू द प्रैक्टिस. ठीक है.
Any doubt now, students? You can ask.